हेलो, नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी माजीवाला, क्लास नाइन्थ, लेसन फिफ्थ, द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का मतलब होता है एक खुशी या जो खुश रहने वाला राजकुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसका पहला पार्ट। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम stood the statue of a happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine or eyes. He had two bright sapphires and a large red ruby glove on his sword hilt. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he lighted just between the feet of the happy prince. शहर के ऊपर एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की प्रतिमा खड़ी थी। वह आंखों के लिए ठीक पतली पत्तियों के साथ सभी जगह पर झुका हुआ था। उसके पास दो उज्जवल नीलम थे और एक बड़ी लाल मणि उसकी तलवार की मूठ पर चमक रही थी। एक रात वहाँ शहर में एक छोटे से निगल गया। उसके दोस्त 6 हफ्ते पहले मिस्र चले गए थे, लेकिन वह पीछे रह गया था। फिर उसने मिस्र जाने का भी फैसला किया। दिन भर उसने उड़ान भरी और रात के समय वह शहर पहुंचा। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि शहर में तैयारी की है। फिर उसने प्रतिमा को ऊंचे स्तंभ पर देखा। मैं वहां डालूंगा। वह रोया। वह ताज़ी हवा के साथ एक अच्छी स्थिति है, इसलिए वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच खड़ा हो गया। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, what did he see? मेरे पास एक सुनहरा बिस्तर वाला कमरा है, उसने खुद को धीरे से कहा, जैसा कि वह गोल दिख रहा था और उसने सोने जाने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वह अपने पंख
के नीचे अपना सिर रख रहा था, पानी की एक बड़ी बूंद उस पर गिर गई। कैसी जिज्ञासु बात है, वह रोया। आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे काफ़ी स्पष्ट और उज्जवल है, और फिर भी बारिश हो रही है। फिर एक और बूंद गिरी। अगर बारिश नहीं हो रही तो मूर्ति का उपयोग क्या होगा? उसने कहा, मुझे एक अच्छी चिमनी के बर्तन की तलाश करनी चाहिए। और उसने उड़ने की ठान ली। लेकिन इससे पहले कि वह अपने पंख खोलता, एक तीसरी बूंद गिर गई और उसने ऊपर देखा और कहा, आहा! क्या उसने देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite didn't had me when I was alive and had a human heart, answered the statue. I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My country called me the happy prince, and happy indeed I was, so I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भर गई थी और आंसू उसके सुनहरे गालों से गिर रहे थे। उसका चेहरा चांदनी में इतना सुंदर था कि थोड़ा सा निगल दया से भर गया। तुम कौन हो? उसने कहा। मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर तुम क्यों रो रहे हो? निगल ने कहा। आपने मुझे बहुत परेशान किया है जब मैं जीवित था और एक मानव हृदय था। प्रतिमा ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या थे, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था। वहाँ दुख प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। मेरे दरबारियों ने मुझे हैप्पी प्रिंस कहा और खुश। वास्तव में मैं था, इसलिए मैं जीवित था और इसलिए मैं मर गया। और अब मैं मर चुका हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ इतना ऊंचा खड़ा कर दिया है कि मैं अपने शहर की कुरूपता और सभी दुख देख सकता हूँ, और हालांकि मेरा दिल अभी तक नहीं बना है। मैं सुन नहीं सकता लेकिन रोता हूँ। क्या क्या वह ठोस सोना नहीं है? खुद को निगल ने कहा। वह किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए बहुत विनम्र था। फार अवे, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and warm, and she has got red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a stained ground for the loveliest of the queen's maids of honor.
to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but rye water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will not bring her the ruby out of my sword head. My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. दूर दूर कम संगीत में स्वर में प्रतिमा जारी रखा। थोड़ी सी गली में एक गरीब घर है, छोटी सी गली में एक गरीब घर है, खिड़कियों में से एक खुली है और उसके माध्यम से मैं एक महिला को एक मेज पर बैठा देख सकता हूँ। उसका चेहरा पतली और पहनी हुई, उसके पास मोटे लाल हाथ सुई से चुभने वाली चीज़ें हैं क्योंकि वह एक सिम्स्ट्रेस है। वह रानी की नौकरानियों के सम्मान के लिए एक शाटन गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी, अगली कोट बॉल पर पहनने के लिए। कमरे के कोने में एक बिस्तर में एक छोटा लड़का बीमार पड़ा हुआ है, उसे बुखार है। वह अपने संतरे से उसे संतरे देने के लिए कह रहा है। उसकी माँ के पास उसे देने के लिए और पानी देने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वह रो रही है। थोड़ा निगल उसे मेरी तलवार के मूठ से माणिक नहीं लाएगा। मेरे पैर इस कुर्सी पर तेज हैं और मैं हिल नहीं सकता। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad. He said, I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt, but the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. The swallow picked up the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. मैं मिस्र में इंतज़ार कर रहा हूँ, निगल ने कहा। मेरे दोस्त नील नदी के ऊपर और नीचे उड़ रहे हैं और बड़े कमल के फूलों से बात कर रहे हैं। जल्द ही वे सो जाएंगे। राजकुमार ने निगल को एक रात उसके साथ रहने और उसका दूत बनने के लिए कहा। लड़का इतना प्यासा है और माँ बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद है, निगल ने जवाब दिया। मैं मिस्र जाना चाहती हूँ, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतने दुखी दिख रहे थे कि थोड़ा सा निगलने पर अफसोस हुआ। यहाँ बहुत ठंड है, उन्होंने कहा, लेकिन वह एक रात उनके साथ रहने और उनके दूत बनने के लिए सहमत हुआ। धन्यवाद लिटिल स्वैलो, प्रिंस ने कहा। निगल ने राजकुमार की तलवार से मान रूबी को बाहर निकाला और उड़ गया शहर की छतों के ऊपर उसकी चोंच में। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ये मैंने आपके लिए 3 कंप्रहेंशन क्वेश्चंस लिखे हैं, वो आपने अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।